आज राज्यसभा दिवस है। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस मौके पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये स्मरणीय अवसर हमें उन गौरवशाली परंपराओं को संरक्षित करने के लिए स्वयं को नए सिरे से समर्पित करने का आह्वान करता है, जो इस शानदार सदन की विशेषता है। Honorable members, I extend my most profound salutations on this auspicious occasion of Rajya Sabha Day. The Council of States, our esteemed Rajya Sabha, stands dignified as the House of Elders, the distinguished upper chamber of our parliamentary democracy. As the quintessential edifice of India's federal architecture, this venerable institution ensures comprehensive representation, equilibrium in governance, and the cultivation of contemplative sagacity. Rajya Sabha endures as a distinguished forum where provincial perspectives and specialized expertise converge to enrich our national trajectory. As the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi astutely remarked during the 250th session, while the Rajya Sabha may be designated as the second house, it remains unequivocally paramount in its significance. The Parliament stands as our Polaris, our unwavering North Star, illuminating the path forward during the nation's most formidable challenges, serving as a beacon of guidance through turbulent times. This commemorative occasion beckons us to consecrate ourselves anew to preserving the illustrious traditions that ought to characterize this magnificent institution, which, unlike the Lok Sabha, maintains its perennial continuity. The gravitas of this institution and the erudition and expertise of its distinguished members remain of transcendent importance. I implore the honorable members to exemplify consummate conduct through excellence, unwavering devotion, steadfast commitment, profound scholarship, and discourse that stimulates intellectual contemplation and enlightenment. The exemplary standard must manifest with immediacy for the citizenry at large. The Rajya Sabha must serve as the paradigmatic archetype for the legislative bodies throughout the largest republic on the planet. On this momentous occasion, I exhort all members to reaffirm their solemn covenant to constructive deliberation, erudite discourse, and collaborative statecraft. Let us remain resolute in safeguarding the sanctity of this august assembly and fortifying the democratic foundations of our great nation, Bharat. 3 अप्रैल के दिन ही 1952 में भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा का गठन हुआ था। तब इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट्स था। राज्यसभा नाम 23 अगस्त 1954 को तत्कालीन सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की ओर से सभा में की गई घोषणा के बाद कहा जाने लगा। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। पिछले 7 दशकों में राज्यसभा ने संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सदन राष्ट्रीय हित और जनकल्याण के विषयों पर अनेक सार्थक विमर्श का साक्षी रहा है। अपने प्रबुद्ध विमर्श से राष्ट्र की प्रगति में योगदान करता रहा है। राज्यसभा स्थायी सदन है। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, जिसमें से 238 सदस्य निर्वाचित और 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कार्यकाल पूरा होने पर हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। देश में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत ब्रिटिश काल में की गई थी
1918 में ब्रिटिश स्टेट सेक्रेटरी एडविन मोंटेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों की अपनी योजना की प्रस्तुति की, जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके आधार पर 1919 का भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। अधिनियम के जरिए द्विसदनी विधायिका की शुरुआत की गई। निचला सदन या केंद्रीय विधानसभा और उच्च सदन या राज्य परिषद। आजादी के बाद संविधान सभा 28 जुलाई 1947 को संघीय विधानमंडल में 2 सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा रखने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई थी और इस आशय का प्रस्ताव उसने स्वीकार कर लिया था। संविधान सभा की बैठकों में राज्यसभा के गठन से संबंधित विभिन्न पहलुओं और इससे जुड़े प्रावधानों और इसकी शक्तियों पर चर्चा की। राज्यसभा का प्रथम निर्वाचन मार्च 1952 में हुआ। 1952 में राज्यसभा के सभापति का पद संभालते समय डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था कि ये एक आम धारणा है कि ये सभा न तो सरकार बना सकती है और न ही उसे गिरा सकती है और इसीलिए ये एक अनावश्यक निकाय है, परंतु कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें पुनर्विचार करने वाली सभा फलदायक ढंग से पूरा कर सकती है। संसद केवल विधायिका ही नहीं, ये चर्चा करने वाला एक निकाय भी है। जहां तक इसके चर्चा करने वाले कृत्यों का संबंध है, तो हमारे लिए इस बात की छूट है कि हम अति मूल्यवान योगदान करें और वह बात हमारे इस कार्य पर निर्भर करती है कि क्या हम इस द्विसदनात्मक प्रणाली को, जो कि अब हमारे संविधान का एक अभिन्न अंग बन चुकी है, न्यायोचित ठहराते हैं। इसीलिए हमारे लिए ये एक चुनौती का विषय है। हम पहली बार नई संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र में दूसरे सदन का प्रारंभ कर रहे हैं और हमें इस देश की जनता के लिए ये बात न्यायोचित ठहराने के लिए पूरी शक्ति के साथ जुट जाना चाहिए कि जल्दी में पारित किए जाने वाले कानूनों पर रोक लगाने के लिए दूसरा सदन आवश्यक है। साफ है कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में राज्यसभा की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, राज्यसभा निरंतर जारी रहने वाला सदन है, यानी ये कभी विघटित नहीं होता। पर सबसे मूल बात यह है कि संसद का मूलभूत काम विधेयकों पर चर्चा करके कानून बनाना है। फिर भी राज्यसभा की भूमिका को चेक एंड बैलेंस की भूमिका माना जाता है, यानी ये दोबारा परखना कि कोई कमी तो नहीं रह गई। राज्यसभा की यही भूमिका इसे खास बनाती है। राज्यों के प्रतिनिधित्व वाले यानी एक परिसंघीय सदन होने के नाते राज्यसभा को संविधान के अधीन कुछ विशेष शक्तियां भी हासिल हैं। उदाहरण के लिए कानून बनाने से जुड़े सभी विषयों या क्षेत्रों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। ये हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ और राज्य सूचियां परस्पर अपवर्जित हैं, यानी कोई भी दूसरे के क्षेत्र में रखे गए विषय पर कानून नहीं बना सकता। लेकिन राज्यसभा के पास इस मामले में विशेष शक्तियां हैं। राज्यसभा चाहे तो सदन में मौजूद और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य बहुमत से संकल्प पारित करके राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं, जो 1 साल के लिए वैध होगा। दोबारा भी संकल्प पारित करके इसकी अवधि 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित 1 या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं जैसे IAS, IPS और IFS जैसी सेवाओं का सृजन भी राज्यसभा कर सकती है। सबसे अहम बात यह है कि अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत आपातकाल की स्थिति हो और अगर लोकसभा विघटित हो चुकी हो तो राज्यसभा से इस स्थिति में इस उद्घोषणा का अनुमोदन कराया जा सकता है। राज्यसभा की कुछ और चीजें इसे लोकसभा से भिन्न बनाती हैं, जैसे इसकी सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र 30 साल होती है, जबकि लोकसभा के लिए ये 25 वर्ष है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स की गरिमा के मद्देनजर भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अधीन मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। इसका मतलब ये है कि राज्यसभा सरकार को बना या गिरा नहीं सकती। हालांकि वो सरकार पर नियंत्रण रख सकती है और यह काम विशेष रूप से उस समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है
जब सरकार को राज्यसभा में बहुमत हासिल नहीं होता। हाल के दिनों में संसद में अवरोध काफी बढ़ा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों पर विरोध की भेंट संसद की कार्यवाही चढ़ रही है और एक तरफ प्रश्नकाल, शून्यकाल से लेकर अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही, तो वहीं अहम बिल भी अटक जाते हैं। हालांकि राज्यसभा की एक खासियत ये भी है कि सदन में पेश और पारित हुए बिल जीवंत बने रहते हैं।